welcome all. Hare Krishna. Yeah, so we'd like to welcome all the wonderful devotees who are teachers, who are wanting to be teachers, who are already teachers in their own respective areas. Radha Gopinath Children's Committee would like to welcome all of you. This is part of our training program for our teachers, primarily aimed at really seeing how our teachers in the Mumbai region, especially that is the region that Radha Gopinath Temple is catering to. How these teachers are well trained to really take care of the congregation children. A very important service that these teachers are doing, and we are very happy to really have this facility of having some of the very wonderful. Personally, they are also great teachers coming here and training us once every month. Please note, my dear friends, this is a monthly event happening first Sunday of every month. Of course, today is the first such event happening. It happens to be also Teachers' Day. The whole of India is celebrating Teachers' Day. Very interesting to really have the event on this wonderful day. So we have this wonderful opportunity to really hear from His Grace Govind Prabhu. Govind Prabhu, as we all know, I'm sure many of you are very much aware of him. He's going to be speaking about the principles of education. The principles of education. Because if you do not know on what education is really based upon, the principles that guide the teachers to be teachers. So and what is the ultimate aim of the teachers is to educate. So what exactly are the principles of education? So we will request His Grace Govind Prabhu. Govind Prabhu, as we all know, is himself being a voracious reader, a voracious writer, and a voracious teacher. Since the last more than 3+ decades that he has been a devotee of the Hare Krishna movement, and over the years he has found special interest in children. He has spent very focused time on training children, and of course part of the training children is training teachers. And as we all know, he has been a very strong sadhaka himself. He himself has been a wonderful student of his teachers. That's very important quality, right? So if you can be a good teacher, provided you have been a good student. And Govind Prabhu has been wonderful student of course, personally trained by His Holiness Radhanath Maharaj. And he has been a training, he has been guiding devotees for the last so many decades. So we are very fortunate to really have Govind Prabhu in our midst. So the talk will be from till around 6 o'clock, and post 6 o'clock we will be having question and answer session. So please keep your questions ready. We will be taking questions on the chat because it may be difficult to really have you all speak over the mic. So you can write your question on the chat. So without much delay, my dear friends, welcome to this first session of Sri Radha Gopinath Temple Children's Committee Teachers Training Program. And I would like to very heartily and very happily welcome His Grace Govind Prabhu to really come and address all the teachers. We have around 121 participants already. And as I understand, all of you are not only from Bombay, from varieties and different parts of India and different parts of the world as well. So I'm so happy to see there's so much of interest in getting trained to be teachers. So it's wonderful. So without much delay, I thank you all for coming. And Govind Prabhu, please, you can begin your talk right away. Hare Krishna. Anatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine. Namaste Saraswati Deve Gaurvani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jai Sri Krishna Chaitanya
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. Sorry to interrupt you, Govind Prabhu. Just one request. We would request devotees, if possible, to keep their videos on. It becomes much easier for the speaker to really relate to people whose videos are on. So, if it is possible, not pushing, but it would be wonderful to have your videos on. Thank you so much. Hare Krishna. Thank you, Sridhama Prabhu, for inviting me to speak something on the principle of education. So here we are going to discuss, the education, the greatest teacher, Krishnam Vande Jagadguru, his style of teaching. What is the psychology of a teacher from the perspective given by Krishna himself? He was the greatest teacher. And what does he say about education? He says that there is nothing more sublime. Nahi jnanena sadrisham pavitram hiya vidyate. He says there is nothing more sublime than knowledge. I remember we grew up listening to a saying in our school, in a primary school, that vidde illadavanu haddikinta kade. It's a Kannada saying that one who does not have an education is less than a pig. No, we are not being offensive to the pig. We worship Varadev, right? But the point is, what is it when there is lack of education that gives rise to limitless suffering? And more than having no education, to have a wrong kind of education is more severe. So unfortunately, in every field, from the material knowledge to the knowledge of the scripture, we are surrounded by system of education which is mostly information centric, because of the big data. Govind Prabhu, sorry to interrupt you. Can we have the lecture in Hindi? ठीक है, yes. Everybody understands Hindi. Those who do not, they can find some way to understand. सबको समझेगा ना कि क्या आपने बोला सब जगह से लोग आए हुए? नहीं, पर मेजॉरिटी प्रभु जी, नरसिंह लीला प्रभु बता रहे थे कि मेजॉरिटी जो है वो अपने यहाँ से ही है, तो ये रिक्वेस्टिंग टू कीप इन हिंदी. ही इज द ओवरऑल ऑर्गेनाइजर. सो आई थिंक आई एम सॉरी आल्सो, मैंने भी आपका इंट्रोडक्शन इंग्लिश में किया, मुझे पता नहीं था कि हिंदी. मुझे तो और भी अच्छा लगता है. तो बताइए. तो विद्या, जहां विद्या गलत प्रकार की विद्या हो और जहां विद्या नहीं हो, विद्या न होना भी समस्या का कारण है और गलत प्रकार का विद्या और भी ज्यादा समस्या का कारण बन जाता है. तो इसीलिए जब हम कृष्ण को देखते हैं, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं कि कर्म, हम जो कहते हैं ना, कर्म के कारण हम कष्ट झेलते हैं, कर्म के कारण हम दुखी बन जाते हैं. परंतु अगर थोड़ा गौर से देखोगे, थोड़ा सा गहराई में जाओगे, कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे, अर्जुन कर्म समस्या का कारण नहीं है, परंतु कर्म से बढ़कर कर्म के बारे में जो अज्ञान है वो ज्यादा समस्या का कारण है. आवृत्त ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा. फिर 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो हमारा जो भ्रमित होने का जो कारण है
वो अविद्या के कारण ही है। परंतु जिसको हम विद्या बता रहे हैं, जो विद्या बन गई है, जो शिक्षक बने हुए, जो शिक्षा देना चाहते हैं, वो कैसे है? वो शिक्षा, इट इज ओनली कनेक्टेड टू मेकिंग पीपल चेंज। हम क्या बना रहे लोगों को? वी चेंज पीपल इंस्टेड ट्रांसफॉर्म पीपल। मैंने कई ऐसे शब्दों को, वी वर गोइंग टू फोकस ऑन फ्यू पॉइंट्स। वी चेंज पीपल इंस्टेड ट्रांसफॉर्म पीपल। हम लोगों को बाह्यकारी रूप से परिवर्तित कर देते। पहले जीन्स पैंट पहनते थे, अभी धोती पहन लेते। पहले लोग सूखी रोटी खाते थे, आजकल पिज्जा खा रहे हैं। पहले झोपड़ी में रहते थे, अभी घर पे रह रहे हैं। ये जो प्रगति का लक्षण है, ये बहुत ही बाह्यकारी है। हाँ, इसमें कोई समस्या नहीं है। रिफाइंड जीवन जीना जीव के लिए आवश्यक है, परंतु हम यहाँ विद्या की बात कर रहे हैं। हाँ? तो ये शब्द भी हिंदी में विद्या है। देखिए, हमारे धर्मशास्त्रों में विद्या देवी, विद्या को एक व्यक्ति के रूप में देखा गया है। विद्या को एक व्यक्ति के रूप में देखा गया है। लेकिन जैसे आपकी भाषा बदल जाती है, द लैंग्वेज, जो भारतीय भाषा और खास करके जो यूटिलिटी फ्रेंडली लैंग्वेज इंग्लिश है, यहाँ हर चीज को आजकल अमेरिका में, अगर आपने जिन्होंने जन्म दिया है, जो जन्म देते हैं वो माता हो जाती है ना। नाउ इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। जन्म देने वालों को एक प्रोसेस के रूप में परिवर्तित कर दिया है। उसको मदरहुड नहीं कहते हैं, उसको बर्थिंग कहते हैं, बर्थिंग। समझ गए ना? जन्म देने वाली एक मशीन, बर्थिंग, ब्रीदिंग, राइट। तो यहां मदरहुड को निकाल दिया गया। तो दुर्भाग्यवश जो आधुनिक समाज जिस भाषा का उपयोग कर लेती है, वो सब वस्तु को मृत्यु तुल्य देखने लगती है। जीवित से मृत्यु। परंतु संस्कृत भाषा और उसके संबंधित जितने भी भाषा है, वो मृत्यु तुल्य वस्तु को अमृतत्व में देखने का प्रयास करते हैं। इसलिए विद्या क्या है? विद्या है जो जीवित नहीं हो, जो मृत्यु तुल्य है, जिनके अंदर संस्कार नहीं है, जिनके अंदर संस्कृति नहीं है, जिनके अंदर सभ्यता नहीं है, जिनके अंदर चलने की क्षमता नहीं है, उन सबको चेतना देने के कारण वो क्या बन जाता है? दिव्यत्व को प्राप्त करने लगता है। इसीलिए विद्या का मूल उद्देश्य चेंज नहीं है। विद्या का मूल उद्देश्य ट्रांसफॉर्मेशन है। परिवर्तन करना, परिवर्तन करना, परिवर्तन करना, राइट। तो इसलिए जहां परिवर्तन नहीं हो, केवल केवल चेंज हो, तो उसका परिणाम क्या होगा? केवल हमारे खाने के पदार्थ बदलेंगे, परंतु खाने की वृत्ति है, खाना खाना खाना, ये वृत्ति नहीं बदलेगी। उसके विपरीत दुर्भाग्य यह है कि जितना व्यक्ति धनिक बनता है, भयात्कारी दृष्टि से उनके खाने के प्रति, भोजन के प्रति, आहार के प्रति एक इंडिफरेंस जागृत हो जाती है। अनदर वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, हम लोग क्या बने? हम लोग शिक्षक नहीं बने हुए हैं, हम उपाध्याय नहीं बने हुए हैं, हम जो प्राध्यापक नहीं बने हुए। हम क्या बने हुए हैं? वी हैव सिंपली बिकम इन्फॉर्मर्स। वी कलेक्ट द फास्ट मूविंग डाटा
हम क्या करते हैं, गूगल में जाएंगे। आजकल अच्छा कंटेंट ड्रिवन लेक्चर देना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आज आपको शिक्षा के बारे में कुछ बोलना हो, आपको केवल 45 मिनट गूगल पे बैठकर फिनलैंड में किस प्रकार से एजुकेशन होता है, अमेरिका में किस प्रकार से एजुकेशन होता है, आप आसानी से एक डाटा कलेक्ट करके लोगों के सामने एटलीस्ट फास्ट मूविंग कंटेंट को प्रस्तुत कर सकते हो। क्या उसकी आवश्यकता है? हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि इतने तेजी से दुनिया चल रही है, तो उसके साथ में रहने के लिए हमको भी इन्फॉर्म्ड होना पड़ेगा। परंतु इंफॉर्मेशन इस शिक्षा का फाउंडेशन नहीं है। शिक्षा का फाउंडेशन और भी कुछ है, एंड वी विल सी दैट। हम इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। और एक चीज है, वी ट्राई टू क्रिएट इंप्रेशन, वी ट्राई टू क्रिएट इंप्रेशन अमॉन्ग्स द स्टूडेंट। हम हमारे विद्यार्थियों के प्रति एक इंप्रेशन, अपना ब्रांडिंग बनाना चाहते हैं। इट इज नॉट अबाउट द चिल्ड्रन, इट इज अबाउट आवर ओन सेल्फ। हमारे बारे में उनके मन में इंप्रेशन होना चाहिए। इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता सुना रहे थे, उनका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये नहीं था कि अर्जुन कृष्ण में खो जाना चाहिए। हाँ, ये भक्त का उद्देश्य होता है कि मैं कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो जाऊं। परंतु शिक्षक भगवान का उद्देश्य क्या होता है कि अर्जुन इस विषय को गहराई में समझ ले। आपने एक भारत के अच्छे एक गायक है, क्लासिकल सिंगिंग गाते हैं, महेश काळे, आपने नाम सुना होगा। जब उनको अवसर मिला एक गायक के पास जाकर सीखने के लिए, मैं फाउंडेशनल प्रिंसिपल सुना रहा हूं, शिक्षक को क्या होना चाहिए। जब वो गए उनके पास सीखने के लिए, और जितेंद्र अभिषेकी बहुत बड़े दिग्गज थे गायन के जगत में, उनके जगह में जाकर, उनके घर में जाकर, उनके अखाड़ा में सीखना, तो ये छोटे बालक को इतना इंप्रेस हो गया। जैसे आपके बच्चे आजकल क्रिकेट कोचिंग के लिए जाते होंगे। सोचो अगर आपके बच्चे का क्रिकेट कोच विराट कोहली हो गया, रोहित शर्मा हो गया, तो उसका जो सेलिब्रेशन है ना कि माय गॉड, माय सन इज बीइंग ट्रेन्ड, मेरा पुत्र, मेरी आजकल बेटी लोग भी खेल रहे क्रिकेट, वो इनके द्वारा ट्रेन हो रहे। तो ऐसे लोग इनको ट्रेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग अपने आप को फैन बनाने के पीछे होते हैं। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फैन, दे आर नॉट द टीचर, दे आर द परफॉर्मर्स। इसलिए होता क्या है, हम हमारे शिक्षकों में खो जाते हैं। वी गेट लॉस्ट इन द टीचर rather than learning। जब विद्या में खोने के विपरीत अगर शिक्षक में हम खो जाते हैं, तो शिक्षण नहीं होता, एक गुलाम पैदा हो जाता है। तो इसलिए जितेंद्र अभिषेक ने उस बालक को कहा, देख बालक महेश, आप यहां मेरे पास क्यों आए हो? मेरी पूजा करने के लिए आए हो? मेरा नकल करने के लिए आए हो? मेरे गाने को सुनने के लिए आए हो? सुनने के लिए तो आप कॉन्सर्ट में जा सकते हो। उन्होंने कहा, देख बेटा, आप मेरे यहाँ गायन सीखने के लिए आए हो, और जब गायन सीखना है, आपको मेरा नकल नहीं करना है। डू नॉट इमिटेट माई स्टाइल। आई विल हेल्प यू टू डिस्कवर योर स्टाइल। मैं आपको मदद करूंगा कि आप क्या हो, आप किस प्रकार से, आपका फ्लेवर है। अपने फ्लेवर को पहचानना यही आपका उत्तरदायित्व है और मेरा कर्तव्य है। सो देयरफॉर वन ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, डू नॉट मेक द स्टूडेंट गेट लॉस्ट इन यू। उनको अपना गुलाम कभी नहीं बनाएगा।
आप उन्हें क्या बनाना है? उनके फ्लेवर को ढूंढने के लिए मदद करना है, राइट? व्हेन यू हेल्प देम टू फाइंड देयर ओन फ्लेवर, उसका परिणाम क्या होगा? वो इतने सशक्त, शक्तिशाली, कृतज्ञता से भरे हुए विद्यार्थी बन जाएंगे। इसलिए हर एक शिक्षा के किताब में, काफी साल पहले मैंने देखा था, उसमें एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को आशीर्वाद दे रहे हैं, और उस आशीर्वाद के दो मुद्दे हैं। दो मुद्दे कौन से हैं? विजयी भव, विनयी भव। विनयी भव, विजयी भव। So the first principle we learned, the foundational principle of education, शिक्षा का मूल सिद्धांत कि गुलामों को नहीं बनाना है। स्वतंत्र विचार करने वाले, अपने आप को पहचानने वाले ऐसे विद्यार्थियों को बनाने से वो विद्यार्थी समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, और अपने जिस संस्था में वो कार्य कर रहे हैं उस संस्था के लिए कंट्रीब्यूटर बनेंगे। कंट्रीब्यूटर विथ इंडिपेंडेंट थिंकिंग, राइट? एंड दूसरा मुद्दा अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, व्हाट इज इट? विनयी भव और विजयी भव। जो आधुनिक शिक्षण है हमें क्या सिखाती है? विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। उनका लैंग्वेज ही क्या है कि कीप इट अप, यू नो, वेल डन, कीप इट अप, वेल डन, कीप इट अप, वेल डन, कीप इट अप। जितना मार्क्स बढ़ाओगे उसको कहेंगे वेल डन, एंड आगे कहेंगे कीप इट अप। हाल ही में जब कई, जो 10th स्टैंडर्ड का, 12th स्टैंडर्ड का जब रिजल्ट आया, उसमें दो विद्यार्थियों को 99% मार्क्स मिले, 99.94 कुछ मिला हुआ है। परंतु दुर्भाग्य देखो, दे हैव अ ग्रेटर हंगर, उनको और भी भूख है कि हमें 100% मार्क मिलना है, 100 आउट ऑफ 100 इन ऑल द सब्जेक्ट। तो इसका परिणाम क्या हो गया? उनके अंदर विजयी बनने की क्षमता है, लेकिन उस विजय ने उनको समाधानी नहीं बनाया, उनको नम्र नहीं बनाया। वो भगवान बनना चाहते हैं, क्योंकि 100 आउट ऑफ 100 केवल भगवान का गुण है, बाकी सब मनुष्य है। मैं हाल ही में कई विद्यार्थियों को बता रहा था, जिस समय डोनाल्ड ब्रॉडमन, आपने नाम सुना होगा, सर डोनाल्ड ब्रॉडमन, जिनके एवरेज को कोई स्पर्श नहीं कर सकता, या विराट कोहली हो, सचिन तेंदुलकर हो, स्टीव स्मिथ हो, व्हाट इज देयर एवरेज कंपेयर टू डोनाल्ड ब्रॉडमन? ब्रॉडमन का एवरेज 99.94, एंड नोबडी हैज गॉन बियॉन्ड 60%, यानी कि 30% का अंतर है। तो जब डोनाल्ड ब्रॉडमन अपने अंतिम टेस्ट खेल रहे थे, फर्स्ट इनिंग्स में वो 0 पर आउट हो गए। उनको केवल 4 या 6 रन बनाना था, उससे उनका एवरेज 100 आउट ऑफ 100 हो जाता था। लेकिन ही गॉट आउट फॉर डक, एंड सेकेंड इनिंग्स उनको खेलने नहीं मिला, तो इसलिए उनका एवरेज कितना बन गया? 99.94, बट ही स्टिल रिटायर्ड। तो इसको लेकर किसी ने वक्तव्य किया था, वक्तव्य क्या किया था? दैट प्रूव्स दैट ही इज अ ह्यूमन। ये हमें सिद्ध करके दिखाता है कि वो मनुष्य है, हमें मनुष्य ही रहना है, और मनुष्य रहने के लिए विजयी के साथ में विनय की आवश्यकता है। कभी कभी आध्यात्मिक जगत में हम केवल विनय सिखाते हैं, और भौतिक जगत में हम केवल विजय सिखाते हैं। ये दोनों का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। देयर इज अ क्लैश बिटवीन विक्ट्री एंड ह्यूमिलिटी। परंतु यहां किसी एक सभ्य, संस्कारी व्यक्ति ने जो इंट्रोडक्शन लिखा था किसी किताब में, टेक्स्ट बुक में, उन्होंने यही आशीर्वाद दिया था विद्यार्थियों को, एक्सलेंस विथ ह्यूमिलिटी, एक्सलेंस विथ ह्यूमिलिटी।
देयर हैज टू बी ए पैशन, वहां जीतने की इच्छा होनी चाहिए, लेकिन जीतने की इच्छा के साथ में उनके यहाँ नम्रता भी होनी चाहिए। और एक केवल आधुनिक शिक्षा इसको नहीं दे सकता, और केवल प्योर अध्यात्म इसको नहीं दे सकता। ये दोनों का इंटीग्रेशन होना चाहिए। व्हेन यू टेल चिल्ड्रन दैट you'll be victorious along with the humility, then there is the greater growth. इसलिए अगर आपने देखा होगा इस बार के ओलंपिक गेम्स में, I was little following the Olympics, not because the sports, because it's all a commercial thing, वो पूरा बिजनेस का है। अगर एनवायरमेंटली देखोगे, अगर आपका बिजनेस फ्रंट को देखोगे, उसके पीछे बहुत सारा जबरदस्त खेल है, राइट। लेकिन जो भारतीय खिलाड़ी थे, खास करके जो कुश्ती वाले, जो जावलिन वाला था, फिर बाद में जो हॉकी वाले थे, अगर आप देखोगे इन सब के सब एक छोटे छोटे गांव में आने के कारण उनमें जीतने की भूख थी, लेकिन कृतज्ञता का भाव था। That you don't see in a sophisticated sports event like cricket, basketball, आप उसको नहीं देखोगे। क्रिकेटर आजकल केवल एक प्रोडक्ट बन के बैठे हुए हैं, दे हैव बिकम अ प्रोडक्ट, राइट। लेकिन ये लोग अपने कुश्ती के जो गियर्स है उसको भगवान के चरणों में रखते हैं। जो हॉकी का एक प्लेयर था उपाध्याय करके, उसने क्या किया, जैसे बनारस पहुंच गया, बनारस खत्म, पहले सीधे बाबा जी के पास चला गया। बाबा जी यानी कि कौन, काशी विश्वनाथ के चरणों में अपने मेडल को अर्पण किया। इन गुड टाइम्स और बैड टाइम्स, सही जगह पे या बुरे समय पर, अरे उसके बाद जाना है, उसको अर्पण करना है। ये जो भावना है वो विजयी के साथ में विनयी रखता है। अगर केवल विनयी बनोगे विजयी के बिना, यू विल नॉट कंट्रीब्यूट इन द सोसाइटी, यू विल बी हम्बल बट यूजलेस। सो वी डोंट वांट पीपल टू बी हम्बल एंड यूजलेस। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो नम्र है लेकिन निरुपयोगी है, और उसके विपरीत जो सक्षम है लेकिन भर भर के गुर्मी है, उनमें अहंकार की भावना है। तो दिस इज सेकंड प्रिंसिपल, अ टीचर शुड हेल्प स्टूडेंट टू क्रिएट पीपल विथ एफिशिएंसी along with humility. बिकॉज अगर केवल सक्षम है और नम्र नहीं हो, सक्षमता अहंकार का कारण बन जाता है, और अहंकार व्यक्ति को अंधा बना देता है, वो संबंधों को तोड़ने लगता है, उसकी वृत्ति, उसकी चेतना, उसकी साइकोलॉजी बिगड़ने लगती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि विद्यार्थी को, पुत्र को और सेवक को प्रत्यक्ष रूप में कभी भी फ्लैटरी नहीं करनी है। फ्लैटरी यानी कि अप्रिशिएशन नहीं, प्रशंसा नहीं, यानी कि बोलते ना खजूर के झाड़ पे चढ़ाना, ऐसा कभी नहीं करना होता। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हनुमान जी है। विजयी भव विनयी भव, अगर आप रामायण में आप एक कथा को पढ़ोगे जहां हनुमान जी को जो समुद्र को पार करना था, उसको लांघना था, छलांग लगाना था, उस समय उनके शिक्षक जो जाम्बवंत ने क्या किया, उनको याद कराया, उनको स्मरण कराया, आप में इतनी शक्ति है। दैट इज द टीचर हेल्पिंग द स्टूडेंट डिस्कवर। और जैसे हनुमान जी को स्मरण हो गया, हनुमान जी खड़े हो गए, उन्होंने देखा इर्द गिर्द, और इर्द गिर्द देखने के बाद क्या देखा उन्होंने, वहां सब देखा, सबके सब, सारे जो कपिगण हैं उनका विश्वास टूटा हुआ है। जितना ज्यादा समुद्र को देखते उतना उनका विश्वास टूटते जा रहा है, टूटते जा रहा है, कम होते जा रहा है, क्योंकि उनको सब योजना पार करना है,
लेकिन उनकी क्षमता 10 की है, 15 की है, 20 की है, प्रामाणिक है, वो प्रामाणिक कपिगण है, परंतु प्रामाणिकता और क्षमता में बहुत बड़ा अंतर होता है. सिंसियरिटी इज नॉट सिनोनिमस टू कैपेसिटी. A capacity and sincerity is to be combined, right? तो इसलिए हमें तीसरा पॉइंट ये सिखाना है, along with sincerity one should also build their capacity, because without building capacity you will not be able to go across to contribute. तो हनुमान जी ने क्या किया, जब उनको स्मरण में आया, अपने इर्द गिर्द लोगों को उत्साहित किया. उन्होंने कहा ये जो समुद्र है इसको पार करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो एक ही छलांग में स्वर्ग में जाकर अमृत को छीन कर ला सकता हूं, जो अन्य कोई कर नहीं सकता. मैं और गरुड़, गरुड़ तो पक्षी है, हनुमान जी पक्षी नहीं है. मैं और गरुड़ दोनों उतने ही शक्तिशाली है जो कहां भी छलांग लगा सकते हैं. और क्या उत्साहित किया, जो मरे हुए कपियों को जागृत कर दिया हनुमान जी. और जब छलांग लगाया, so he had built his capacity, and because he had built his capacity he boosted the sincere kapis. उनको विश्वास दिलाया. और जैसे ही सीता मां के पास आ गए, बहुत सुंदर है, और सीता जी ने पूछा, अरे बेटा तुम कैसे आ गए इधर, ये संभव है क्या, क्या राम यहां आ पाएंगे और रावण का वध कर पाएंगे, रावण की सेना इतनी बड़ी है. तो हनुमान जी ने क्या कहा, हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि अरे कोई करने के लिए तैयार नहीं था, सब बकवास लोग थे, किसी में शक्ति नहीं थी. उन्होंने कहा, हे माते, हमारे सुग्रीव महाराज के सेना में ऐसा एक भी सेवक नहीं है जो मेरे से कम है, सबके सब मेरे समान या मेरे से बड़े हैं. जैसे हनुमान जी ने अपने कपिगण को उत्साहित किया, उसी प्रकार से वो सीता को जाकर उन्होंने समाचार नहीं दिया. He did not give information to Mother Sita, but he encouraged her so much, he gave her a confidence. इसलिए this is the second principle, almost the third principle. What is the first principle? The first principle is, what is the first principle? I just, Siddhama Prabhu. Yes, Prabhuji. You know the first principle? The first principle is you said humility Yes. and capability. No, that is the second. It is helping discover. No, गुलाम नहीं बनाना है. You helping discover what you really independently rather than imitating. या गुलाम नहीं बनाना है. विनयी भव, विजयी भव, गुलाम नहीं बनाना है. Do not make your student get lost in you. Right. Third principle of education. No. What is the third principle of education? The third principle of education is उनको अपने विद्यार्थियों को फॉल्स कॉन्फिडेंस मत देना ग्रेड्स के कारण. उनको मार्क्स के कारण एक फॉल्स कॉन्फिडेंस जागृत हो जाती है. उनकी भाषा के कारण, कम्युनिकेशन स्किल के कारण उनमें क्या हो जाता है, एक फॉल्स कॉन्फिडेंस आ जाता है. परंतु वे अगर प्रश्न का उत्तर देने के बदले में वो हमेशा के लिए प्रश्न करने वाले बन जाते हैं. We ask them barrages of questions to answer instead of making them to challenge the old ideas, instead of making them to discover the new avenues to grow themselves and to grow their legacy. इसका अर्थ यह है
देखिए ऐसा क्यों है, दिस इज नाउ 10 दिन में मैं कम से कम एक 10 परिवार के बच्चों को उनको माता पिता से मिला। एंड व्हाट आई फिगर्ड आउट, मैंने क्या देखा कि बच्चों को अपने माता पिता से कंप्यूटर अच्छा से आता है, मोबाइल चलाना अच्छा आता है, इंग्लिश बोलना अच्छा आता है, बिकॉज जितने भी माता पिता है अपने बच्चों को अपने से अच्छा पढ़ाना चाहते हैं। हाँ, कई लोग कर नहीं पाएंगे, सचिन तेंदुलकर अपने पुत्र को अपना से अच्छा नहीं कर पाएगा, गावस्कर नहीं कर पाया, ध्यानचंद जी नहीं कर पाए, राइट, नहीं कर पाए, कई लोग नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी को उसका बाप उनके जैसे बना नहीं पाया, परंतु साधारणतः माता पिता अपने बच्चों को अपने से अच्छा बनाना चाहते हैं। जब वो अपने से अच्छा बनाना चाहते हैं तो इसलिए अपने क्षमता से बाहर जाकर उनको अच्छे अच्छे स्कूल में डालते हैं, अच्छे अच्छे टीचर के पास डालते हैं, राइट। जब भी बच्चे ऐसे लोगों के पास जाने के कारण और फैसिलिटी ज्यादा होने के कारण, जो हमारे समय 40 साल पहले जो विद्यार्थी 10वीं का विद्यार्थी जो इंफॉर्मेशन अपने पास में रखता था, और आज के विद्यार्थियों के पास हर एक विषय के बारे में जो इंफॉर्मेशन है इतना ज्यादा इतना ज्यादा है, नो, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, 25 पेपर का पिछले 25 एग्जाम के पेपर को सॉल्व करना, वी डिडंट हैव दैट फैसिलिटी। अगर आपको अच्छा क्रिकेटर बनना है ना, क्रिकेटर बैट्समैन बनने के लिए इस अभी केवल स्किल हो गया है, आर्ट नहीं है। गेटिंग 90+ मार्क, इट इज नॉट इंटेलिजेंस, इट इज एन एल्गोरिदम। 25-30 साल पहले जो उनके माता पिता जब 80% आ जाता था, वो क्या बनते थे, वो डॉक्टर बन जाते थे। नॉट ओनली डॉक्टर, दे वुड बी 10th और 15th इन द स्टेट। परंतु आजकल एल्गोरिदम ऐसा बन गया है कि 10वीं कक्षा में सीबीएसई में ये बार 91% रिजल्ट है, 99.94, 98.19, 98 फॉर 97, इस प्रकार से जो 90% मार्क्स लिए हुए बच्चे, उनकी संख्या 25,000 से ज्यादा है। जब 80% आपको रैंक दिया करता था, अभी 90% विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, बहुत ज्यादा है, 25,000, इमेजिन। तो क्या हो गया है कि हर एक स्कूल ने एक एल्गोरिदम को क्रैक किया है। वो एल्गोरिदम को अगर आपने प्रयास कर दिया, 90+ आ गया। सिमिलरली बैटिंग स्किल हो गया, बॉलिंग स्किल हो गया, उसको मैथमेटिकली दे डील विथ इट, किस प्रकार से स्विंग करने से कैसे होगा, कौन से दिशा में डालना चाहिए। मैंने सुना है कि एक सॉफ्टवेयर आया हुआ है, वो जो चिप है वो बैट पे लगाते हैं, और जब ये प्रैक्टिस सेशन होने के बाद यू कैन एक्चुअली पुट दैट चिप इन द कंप्यूटर एंड सी कि कितने बॉल आपके बल्ले के बीच में, बल्ले के साइड में, कितने एंगल में कौन सा बॉल किधर से गिरकर किधर बैट पे लगा, ये पूरा करने की क्षमता होती है। तो अगर किसी में एल्गोरिदम आ गया, स्किल आ सकता है, दे मे गेट द स्किल ऑफ इट बट दे विल नेवर गेट द डिस्पोजिशन ऑफ इट। उनके अंदर डिस्पोजिशन, अंदर माने की डिस्पोजिशन यानी कि उनकी साइकोलॉजी नहीं बनेगी, उनका केवल स्किल बनेगा। और स्किल आपको रियल लाइफ में बहुत कम काम में आता है, वो कर्ण के समान बन जाते हैं, स्किलफुल है लेकिन उन्हें अपने जीवन के महत्वपूर्ण काल में अपनी ज्ञान भूल जाते हैं। एंड देयरफॉर इसीलिए let the children challenge their surrounding rather than simply answering the questions। हाँ, निश्चित रूप से उनको क्वेश्चन देना है, लेकिन विद्या का मूल 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 सिद्धांत है, let them challenge their surrounding।
rather than simply answering the questions. The questions will you grade, questions will give you grades, but challenges will basically help you to transcend your challenging situation. चुनौती के जो स्थिति है उसको पार करने में मदद कर सकते हैं. एंड देयरफॉर इफ यू सी, अगर आप देखोगे आजकल के बच्चे दे आर रिफाइंड इन स्पीकिंग. कभी म्युनिसिपैलिटी में गए, कभी सब्जी मंडी में गए, कभी कोर्ट में गए हुए, कभी पुलिस स्टेशन में गए हुए, कभी अपना जो बिल भरने के लिए गए हुए. तो इसलिए उनको बार्गेन करने की कला नहीं आती है. और जब बार्गेन करने की कला नहीं आती है तो क्या होगा, एक तो विड्रॉ करेंगे या तो झगड़ा करेंगे. हमारे एक बहुत अच्छे डिवोटी एनडी देसाई श्रीनाथ जी प्रभु कहा करते थे ना, दो लोग थे, दोनों ने इसी मुद्दे को अलग अलग प्रकार से देखा. एक आश्रम में निवास करने वाले पटेल थे और एक बिजनेस करने वाले पटेल थे. दोनों पटेल लोग थे. जो आश्रम में रहने वाले पटेल ने कहा कि लाइफ इज अनफेयर, लर्न टू लिव विथ इट. यानी कि जीवन बहुत ही अन्याय का भरा हुआ है, तो एडजस्ट करके जिया करो. लेकिन ये भी भक्त है, वो बाहर रहने वाले भक्त थे, बिजनेसमैन थे. उन्होंने क्या कहा, श्रीनाथ जी प्रभु ने कहा लाइफ इज अनफेयर, लर्न टू बार्गेन विथ इट. प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए थे, उन्होंने कहा मैं कलकत्ता का बच्चा हूं, इसलिए मुझे कोई फंसा नहीं सकता, मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता. सर्टेनली हम सब्जी वालों से, रिक्शा वालों से बार्गेन नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चों को बार्गेन सिखाना चाहिए. दे शुड लर्न. बार्गेनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम क्वारलिंग. झगड़ा करना और तर्क शुद्ध व्यवहार करना, इसमें अंतर है. जब इसको करेंगे बच्चे लोग, तो उसका परिणाम क्या होगा, they will not withdraw from life. They will have the power and fearlessness to handle the situation. That is another interesting point, right? What is it? Learn to teach them to bargain. हमारे कृष्ण जब ये हस्तिनापुर आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो कौरवों के साथ में बार्गेन किया, उन्होंने कहा देखो न्याय दो तो आधा दो, अगर वो देने से आपत्ति है तो कम से कम 5 ग्राम दो, परंतु उसके लिए भी अगर आपकी तैयारी नहीं है, तो शांति की अपेक्षा नहीं करते हो, तो रण के लिए भी तैयार है. कृष्ण ने दुर्योधन को क्या कर दिया, कॉर्नर कर दिया. बार्गेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल. इसलिए भारतीय जो बिजनेसमैन, मारवाड़ी, गुजराती, सिंधीज और अन्य लोग क्यों सक्सेसफुल है, सक्सेसफुल इसीलिए दे नो द आर्ट ऑफ बार्गेनिंग. क्यों हमारे स्त्रियां, भारत के स्त्रियां 26-27% अपने जो इनकम को सेविंग में लगाते थे. दिस ऑल्सो हैज टू बी टॉट. कंपेयर टू अमेरिकन फैमिलीज, they cannot survive. अगर उनके पास 2 साल के लिए जॉब नहीं है, they can't survive more than 6 months without salary. लेकिन मोनेटाइजेशन, जब डिमोनेटाइजेशन हो गया, तब क्या किया था, हमारे स्त्रियां इधर से पैसा निकाल रही, उधर से पैसा निकाल रही है. आपने सुना होगा लाल बहादुर शास्त्री जब वो शिक्षक थे, उनके पास कोई ऐसे सदगृहस्थ दान मांगने के लिए आए. एक कहकर के शास्त्री जी मेरी बेटी का विवाह करना है, हमारे पास बहुत पैसे कम है, हमको 300 रुपए की आवश्यकता है, आप हमें दे सकते हो. तो शास्त्री ने कहा देखो, मैं जो भी तनख्वाह आती है मैं मेरे पत्नी को दे देता हूं. तो जब वो चले गए सदगृहस्थ उनसे मांगने के लिए, तो उन्होंने कहा माता जी, हमारे इनके पास मेरी बेटी का विवाह होने वाला है,
आप हमें कुछ पैसा दे सकते हो क्या? तो उन्होंने 300 रुपए दिया। तो जब शास्त्री जी को इसके बारे में समझ में, उन्होंने पूछा, रहे हाउ कुड यू गिव, आपने कैसे 300 रुपए दे दिया जब हमारी तनख्वाह ही 30 रुपए थी? तो वो माता जी ने बोला, देखो हमारा खर्चा 20 रुपए है, तो हर महीना मैं 10 रुपए करके सेव करते हो, उसमें से मैंने 300 रुपए दे दिया। तो अगले दिन शास्त्री जी ने खत लिखा सरकार को, मेरी सैलरी 20 रुपए कर दो। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर 20 रुपए करने के बाद भी उनकी पत्नी ने 5 रुपए नहीं बचाया हो, तो वो शास्त्री की पत्नी ही नहीं है। इतनी कि उनके अंदर वो क्षमता थी, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस सेविंग करने की कला जो परिवार में लोग सीखेंगे नहीं है, वो हमेशा दे विल एक्सपीरियंस व्हाट, limitation of growth, limitation of growth, limitation of growth. So therefore teach them the art of bargain. That means they're able to challenge the outside world. Next one, हम क्या कर रहे हैं? We are creating more and more employees instead of discoverers. ये बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है विद्या के क्षेत्र में और रिसर्च के क्षेत्र में है कि भारतीय लोग, Japan also nowadays, because there is such a system, इतने अच्छे सिस्टम होने के कारण ऑटोमेटिक कार, ऑल वेजिटेबल, कट वेजिटेबल्स सारे, मतलब आपको कहां जाकर परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं न होने के कारण इट इज इजियर फॉर यू टू गो एंड कलेक्ट थिंग्स, डिस्कवर बनने की क्षमता खो गए। सो देयरफॉर वी आर क्रिएटिंग एम्प्लॉइज इंस्टेड ऑफ डिस्कवरर्स। और जो समाज डिस्कवरी नहीं करेगा वो एम्प्लॉय रहेगा, हमेशा वो पीछे ही रहेगा, बिकॉज यू विल ऑलवेज बी सेकेंड फिडल। हमारे एक मित्र है आईआईटी मुंबई में, वो मुझे बता रहे थे कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी ऑफ मॉडर्न इंडिया दैट पीपल आर विलिंग टू इन्वेस्ट मनी विच इज विजिबली प्रॉफिटेबल। वो सेकेंड फिडल बनकर काम करते हैं। बोले इतने सारे डिस्कवरी किया हुआ है, बोले हमारा काम है डिस्कवरी करना, लेकिन एक बिजनेस वालों को उसमें विश्वास रखते हुए इन्वेस्टमेंट करेगा, देन विल हैव बेटर टेक्नोलॉजी देन इजराइल। हमारे पास बेटर सिस्टम्स आ जाएंगे अमेरिका से बढ़कर। सोचो ना, जब इंडिया में कोविड था सबके समान ही, when India decided to make their own COVID, it was ridiculed, it was suspected, it was doubted. अरे ये होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं। देखो कितनी बड़ी मानसिकता है। And this has caused such an anger in the Western world, China, तो उनको गुस्सा आ जा रहा है, ऐसे कैसे कर सकते हैं? और कितना उसके प्रति कितना स्लैंडर किया, राइट? अगर आपने सेकेंड वेव्स के बारे में पढ़ा है, सेकेंड वेव्स आया, समस्या किया, बट दैट सेकेंड वेव जो टारगेट किया गवर्नमेंट को लेकर, सॉलिड टारगेट किया, राइट? तो प्रधानमंत्री का जो ये है, क्या बोलते उसको, पॉल का जो फेम है वो कम हो गया था, राइट? जस्ट इमेजिन, वी हैव बीन सो ब्रेन वॉश, हम इतने ब्रेन वॉश हो गए, हमको लगता है कि नहीं ये कौन करेगा। मुझे एक डॉक्टर बता रहे थे, एक बहुत बड़े आयुर्वेदिक डॉक्टर बता रहे थे, उन्होंने कहा आजकल डॉक्टर लोग सीरियस पेशेंट को देखना नहीं चाहते। मैं बोला क्यों? वो तो उनके लिए सीरियस पेशेंट देखेंगे तो दैट विल मेक देम वेरी एक्सपर्ट इन द फ्यूचर, नो? आई सेड दे आर मोर इंटरेस्ट, ही सेड they are more interested keeping their data of having no death while treating their patient. They are more interested in that rather than taking the challenges of dying patient. तो अपने विद्यार्थियों को काफी रुपए बोलते, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ट्रीटिंग करते समय मर जाएगा ना,
but at least you will learn. If you don't try, anyway he will die, but if you try, there is a chance of he surviving. देखो ये एक कॉन्शियसनेस ने होने के कारण, आप जानते होंगे राम जेठमलानी एक बहुत बड़े प्रसिद्ध वकील थे भारत के, उनका सक्सेस रेट कितना था? ही सक्सेस रेट ओनली 6%, 6% उनका सक्सेस रेट था. But he was the one of the most famous lawyer. Why? Because he only chose the most challenging, difficult, unsolvable problems. जो कोई दूसरा हाथ ही न लगाता था उसको लगाते थे वो हाथ. इसलिए फीस कितना लेते थे? अगर उनके बाजू में आपको प्लेन में बैठना है, उनसे कुछ पूछना है, तो 15 लाख 10 लाख ऐसा फीस करते थे. And plus he also would help lot of people in solving their problems also. Legality का problem लेकर, right? So, and the worst part of this, जहां बाहर जाकर उनको चैलेंज नहीं सिखाओगे, उसका परिणाम क्या होता है? Then they'll fight with their own relatives. अपने भाई के साथ लड़ेंगे, अपने बहन के साथ में लड़ेंगे, अपने कजिन के साथ में लड़ेंगे. फिर लड़ना वन ऑफ द रीजन, एक कारण लोग अपने घर में ज्यादा वायलेंट बने हुए हैं, बिकॉज बाहर लोग कवर्डिस है. डरपोक बनने के कारण बाहर अपना अंदर शौर्य दिखाने लगते हैं. बट इफ देर फाइटर्स आउटसाइड, देन दे बिकम वेरी सबमिसिव इनसाइड. राइट? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. टीच देम बार्गेन, टीच देम नेगोशिएशन स्किल, टीच देम जस्टिस ओवर सिंपली सेइंग दैट फॉरगेट इट. उससे क्या होगा? केवल गुलाम नौकर बनेंगे, डिस्कवरर नहीं बनेंगे. द नेक्स्ट वन, इन द आधुनिक शिक्षा में हम शेमलेसनेस को कॉन्फिडेंस की दर्जा दी हुई है. When people are more and more shameless, that is called as confidence. तो हाल ही में बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी भी हुआ. जो नीरज चोपड़ा है, he comes from a small town, smart looking, he became the champion. आपने देखा होगा 2-3 टीवी चैनल उसको केवल उसके सेक्स लाइफ के बारे में पूछ रहे थे. एंड जो एलिटिस्ट जर्नलिज्म है ना, एलिटिस्ट जर्नलिज्म, फॉर देम कॉन्फिडेंस इज कनेक्टेड टू शेमलेसनेस, एंड ही बिकेम एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल विद दैट. तो देखो, इसीलिए when our children express, ओ मम्मी पापा आप क्या, मुझे बोलना नहीं आता है, मैं बाहर जाकर बोल नहीं सकता हूं, गलत है, बोलना आना चाहिए. लेकिन किनके प्रति इंप्रेस हो रहे हैं? Are they getting impressed with assertive, confident people, or are they getting impressed with the shameless people? So therefore, it is another principle of education is to create people with confidence, and confidence is not synonymous to shamelessness. Shyness is good, but when shyness is connected to confidence, अगर आत्मविश्वास के साथ में वो जो शाइनेस होता ना, अगर वो डालेंगे, उसका परिणाम क्या होगा? Then you'll have people like them who have great confidence to throw their javelin or anything which is connected to life, but at the same time remain modest. And this is very rare to see nowadays. There are huge, इतने असभ्यता भरी हुई है, और उसको देखकर हमारे बच्चे लोग समझते कि कॉन्फिडेंस है. उसके विपरीत शिक्षक लोग उनसे उनको इतना दूर रखते हैं कि नहीं इसके पीछे जाओ मैं, don't go to these people. So what happens? You are avoiding shamelessness. While avoiding shamelessness, you are avoiding confidence also. So therefore, it is our responsibility to help our children develop confidence with shyness. वहां कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन ऐसे विषयों के प्रति बिना बेशर्म होकर चर्चा करने की इच्छा न रखने वाले. बिकॉज इट्स अ प्राइवेट मैटर, ये पब्लिक में क्यों डिस्कस करना उसको? इवन दैट एनिमल्स डोंट डिस्कस. एंड अनदर वन इज, लास्ट 2 are left, one more is, let us help create
पॉपुलर पर्सन इंस्टेड ऑफ फेमस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी परसों में एक स्कूल के बच्चों को एक सेशन ले रहा था। आई आस्क्ड द स्टूडेंट्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेमस एंड पॉपुलर। एक स्टूडेंट ने तुरंत उत्तर दिया कि फेमस पीपल नॉट नेसेसरली पॉपुलर and popular person is not necessarily famous. No? One of the girl who appeared in the contest of Indian Idol, right? उसमें किसी ने भेजा था उसका क्लिपिंग when she appeared first time. जब वो पहली बार आई थी तो उन्होंने अपने पिताजी को अपना हीरो बनाया। She said my father is my hero. And what does he do? He was simply a driver in the ambulance. एम्बुलेंस में ड्राइव करते थे एंड यू कुड सी दैट देयर वाज सो रियल। बोले मेरे पिताजी मेरे हीरो है, उसमें कोई शर्मिंदा नहीं थी वो, यानी कि उसके लिए उसके पिताजी पॉपुलर थे, ही वाज नॉट नेसेसरली फेमस। अ पॉपुलर पर्सन व्हाट डज ही डू? अ पॉपुलर पर्सन वो लोगों को परिवर्तन करने के लिए प्रयास करेगा। And a popular person, if he become famous, that's a different thing. But the famous person may not necessarily be a popular. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। Fame is basically in the hands of destiny. परंतु popularity, contributing जैसे बच्चे लोग होते हैं, टीचर होते हैं, दैट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक माता पॉपुलर हो सकती है अपने बच्चों के, एक बहन पॉपुलर हो सकती है, एक शिक्षिका पॉपुलर हो सकती है, एक पिता पॉपुलर हो सकता है, एक ड्राइवर पॉपुलर हो सकता है, एक पुलिस पॉपुलर हो सकता है, एक रिक्शा वाला पॉपुलर हो सकता है। आपने देखा होगा साउथ इंडिया में एक रिक्शा वाला है, यू नो द वे ही टेक्स केयर ऑफ हिज कस्टमर्स, ही इज नॉट फेमस, he is popular, and because he became a popular he also has become a famous because of social media. So therefore जब शिक्षकों को ये जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल को समझेंगे, ऑफ कोर्स विद्या एक समुद्र के समान है, यू नो बहुत बड़ा समुद्र है, लेकिन एक कई चीजों को अगर हम देखेंगे, वी विल सी सम ऑफ दिस प्रिंसिपल एंड इम्प्लीमेंट इन आवर लाइफ, देन व्हाट हैपेंस, उसका परिणाम ये होता है कि विद्यार्थीगण हमेशा के लिए कृतज्ञता को व्यक्त करते हैं, बिकॉज दे आर कॉन्ट्रीब्यूटर्स। अगर विद्यार्थी कॉन्ट्रीब्यूटर नहीं हो तो उसकी कृतज्ञता होगा, लेकिन वो केवल काव्यात्मक हो जाएगा, लेकिन परिवर्तित नहीं होगा। इसलिए शिक्षकों को ये जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल को लेकर, इफ दे वर्क ऑन हेल्पिंग देमसेल्व्स एंड देयर स्टूडेंट्स, उसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा जो उपनिषद कहता है, सहना भुनतु सहना गुणतु सहवीर्यम करवावहि तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहि। यू नो, ओम शांति शांति शांति, ये जो श्लोक है ये तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षावल्ली करके एक पूरा विभाग है शिक्षण के बारे में। विद्यार्थी की, गुरु की चेतना, शिक्षक की चेतना क्या होती है, इसमें शिक्षक ये कह रहे, ये प्राध्यापक ये कह रहे कि हे विद्यार्थी, दोनों मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं परम सत्य से, भगवान से, कि हम दोनों मिलकर पढ़ेंगे, हम दोनों मिलकर तेजस्वी बनेंगे, हम दोनों मिलकर ग्रहण करेंगे विद्या को, और हम कंट्रीब्यूटर बनेंगे, और इसी प्रकार से हम शांति को प्राप्त करेंगे। आज शिक्षक का दिवस है, यू नो, फॉर अस द डे ऑफ टीचर इज गुरु पूर्णिमा, राइट? दिस इज अ वेरी सेक्युलर कॉन्सेप्ट, फिर भी उसका भी उपयोग कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज मेनी पीपल रिमेम्बर द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, अच्छा ही है। तो एक केन उपनिषद कहता है, यू नो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट? विद्यार्थी और शिक्षक में क्या अंतर है? अगर इस मुद्दे को अगर हम मन में रखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उत्तर ये दिया गया है, शिक्षक वो है जो जानते हैं कि हम नहीं जानते,
The teacher is one who knows that he does not know. And who is the student? Student is one who does not know that he does not know. विद्यार्थी वो है कि वो जानता नहीं कि मैं जानता नहीं. शिक्षक ये है जो जानते हैं कि हम नहीं जानते. फिर ये दोनों लोग आकर मंथन करेंगे. शिक्षा इज ऑल अबाउट चर्निंग, और उस चर्निंग में विद्यार्थी भी आगे बढ़ेंगे और शिक्षक भी आगे बढ़ेंगे. और स्टूडेंट्स आर बिकमिंग टीचर्स and teachers are becoming more and more deeper students. तो इस प्रकार से इस मंथन में, इस चर्निंग में what does it do? ज्ञान का जो मक्खन है वो बाहर निकलता रहेगा और इसका हम खुद आस्वादन कर सकते हैं और दूसरों को इसका वितरण कर सकते हैं. धन्यवाद. किसी का कोई प्रश्न है? धन्यवाद गोविंद प्रभु, बहुत ही बढ़िया, आपने बहुत ही मूल सिद्धांतों का मेंशन किया. यू रियली कवर्ड द फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. थैंक यू वेरी वेरी मच. आई एम श्योर द टीचर्स, सभी शिक्षक गण जो यहाँ उपस्थित है उन्होंने ग्रहण किया होगा. तो इस समय अभी किसका प्रश्न है तो वो इधर चैट पे कंफर्टेबल तो चैट पे ले सकते हैं, पर अगर हिंदी में पूछना है तो आप आपका हैंड रेज कर सकते हो, हम आपको अनम्यूट करेंगे और आप अपने प्रश्न पूछ सकते हो. फिर किसी को प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं. हैंड रेज की फैसिलिटी है जूम में, तो आप वहां हैंड रेज कर सकते हो. यस सोनाली माता जी, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूं. Yes, Mataji, you can unmute yourself. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. प्रभु जी, मुझे ये पूछना था. हरे कृष्ण. आई एम ऑडिबल? हम आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है. हमारी जा रही है, बताइए आप. हाँ प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि जो आजकल के बच्चे हैं वो बहुत मतलब रिएक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं कि किसी भी चीज से. अगर टीनेजर्स जो है तो अगर आप अच्छे से समझाने भी जाए तो भी वो एकदम से रिएक्ट हो जाते हैं. मतलब जैसे हमारे भी जमाने में हम लोग थे कि मम्मी पापा की बात सुनते थे तो शांति से सुनते थे या रिएक्ट इतनी जल्दी नहीं होते थे. लेकिन आजकल के बच्चे बहुत ही ज्यादा मतलब एकदम रिएक्शन भी ऐसे रहता है हाइपर ऐसे. तो उनके साथ कैसे डील किया जा सकता है? मतलब क्या उनको समझाने का तरीका गलत हो सकता है या क्यों है ऐसा? फिर से हमें मूल सिद्धांत पे जाना पड़ेगा. पहले समस्या को दूर करने के पहले समस्या क्यों हुई है इसको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है. जैसे एक अच्छे डॉक्टर जब डायग्नोस करते हैं ना, जब डायग्नोस करने से ही ट्रीटमेंट की समस्या खुल जाती है. अगर डायग्नोस ही ठीक नहीं किया, कितने भी अलग अलग प्रकार के सिंसियरली मेडिसिन देने पर भी थोड़ा सा इधर उधर मदद करेगा, लेकिन फिर भी वो और साइड इफेक्ट भी कर देता है. इसलिए हर समस्या को फिर से फाउंडेशन में जाना है कि क्यों हो रहा है. तो जब फाउंडेशन में समझ में आता है तो हम इतने फ्रस्ट्रेटेड नहीं बनेंगे. एंड व्हाट इज द मूल कारण इसका ये तो कॉमन से अभी कॉमन है. पहले गाली अगर आप देते थे, मराठी में देते थे, हिंदी में देते, अपनी भाषा में देते थे, फिर मार मिलती थी. नाउ इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज. एक मेरे मित्र एक बड़े कॉमेडियन से पूछ रहे थे, स्टैंड अप कॉमेडियन से, कि व्हाई यू गाइस यूज फाउल वर्ड. नो, अलग अलग गंदे गालियों को देते. बोले दैट इज पार्ट ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी. जब तक हम गाली देंगे नहीं, लोग उसको स्वीकार नहीं करते. और देखो क्या चेतना बन गई है. तो यहाँ हमें ये देखना चाहिए कि क्यों हमारे बच्चे लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं. तो इसमें पूरा खाने के साथ, म्यूजिक के साथ, खेल के साथ, हर जगह में वी आर ओनली फोकसिंग बेस्ड अपॉन डेस्टिनेशन सेंट्रिक. हमें हर एक में हमें केवल रिजल्ट ओरिएंटेड है. हम लोग सक्सेस ओरिएंटेड है, जर्नी ओरिएंटेड नहीं है. बच्चों के साथ में माता पिता भी ऐसे हो गए
पहले अगर कोई डॉक्टर नहीं बनता था, इंजीनियर नहीं बनता था, कुछ नहीं बनता तो कुछ तो बन जाता था. Now even the people talk about freedom, we should give freedom to our children, but they are not giving them freedom. There is an expectation. And secondly, जहां freedom की बात आती है वहां हम लोग freedom के बदले में उनको recklessness सिखाते. There is whole thing all this सबसे बड़ा मूर्खता की बात होती है unconditional love. There is no such thing as unconditional love of children. जहां अनकंडीशनल लव बच्चों के प्रति होगा या किसी के प्रति भी होगा, इट इज नथिंग बट प्योर एक्सप्लॉयटेशन. जो ऐसा अनकंडीशनल लव दे रहा है वो अपने आप को एक्सप्लॉयट करके ले रहा है, या जो कोई अनकंडीशनल लव के बारे में बात कर रहा है वो भी दूसरों को एक्सप्लॉयट कर रहा है. इसलिए एवरीबॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बिहेवियर. ये पुराने समय में इसको पालन करने के लिए एक सोसाइटी हुआ करती थी, समाज हुआ करता था, कुटुंब हुआ करता था. अभी कुटुंब नहीं है, माँ बाप और बेटा या बेटी, माँ बाप या ज्यादा से ज्यादा 2 लोग होंगे और सबके घर बंद होते हैं. सो देयर इज नो कम्युनिटी सेंट्रिक लाइफस्टाइल. तो इसलिए बच्चे को पैम्पर करना पड़ता है, और जब ये बच्चे पैम्पर हो जाते हैं, एंटाइटलमेंट को प्राप्त करते हैं, जब एंटाइटलमेंट को प्राप्त करते हैं देन दे डिमांड. जब वो डिमांड करने लगते हैं, जब उनकी डिमांड पूरी नहीं होती है, सो देन दे रिएक्ट. आप कितना भी करो, we want our children to be successful, but we are not teaching them gratitude along with success. यही तो मैंने बताया, विनय और विजय. we want विजय without विनय. तो क्या होगा? naturally इस प्रकार के it is not your child or specifically this child. It is a common principle all over the world. क्योंकि हमने एक फाउंडेशनल प्रिंसिपल के साथ में हस्तक्षेप करने के कारण ये सब जगह में दिखाई देता है. Not one, not two, almost everywhere, invariably. False ego in children that I know better than my parents. And they may know also, but the way they came out. तो इसलिए फाउंडेशन प्रिंसिपल को समझना पड़ेगा. इसलिए ना और अपब्रिंगिंग, इसलिए गुरुकुल सिस्टम क्यों हुआ करता था कि वो सराउंडिंग में वो नंबर बनी जाते थे. So it is the responsibility of the parents not to show up their wealth. It is the responsibility of parent to tell that we have only this much. Can you deal with this much? इतना ही पैसा हमारे पास, इतना ही हमारे पास होगा, इतना ही. You have to put control openly. I know so many parents, they sell their land just so that their children should go to best of the school. Best of the school means what? A school which a branded name है उसको. तो इसका परिणाम निश्चित रूप से when you pamper your child, उसमें कृतज्ञता की भावना नहीं होगी, न विजयी होगा न victorious होगा. Today only I was talking to somebody, one sister supporting her brother for everything, right? But लेकिन फिर भी कृतज्ञता नहीं है, demanding more from her. तो क्या हो गया कि in the name of serving, taking care of her brother, she was pampering him. She was giving an unconditional, facility for him to exploit her. इसलिए गीता में भगवान जो कहते हैं, love has to be tough, a love with discipline. ये प्रशासन की आवश्यकता बहुत है. इसलिए 3 चीजें है ना भारत में, शासकांग, कार्यांग और राज्यांग. नो, व्हाट इज इट? शासकांग, न्यायांग, कार्यांग और शासकांग. जुडिशरी ने रिजल्ट दे दिया, अरे इस आदमी को 50 लाख रुपए दे दो, बट एग्जीक्यूशन कौन करेगा? अगर एडमिनिस्ट्रेशन में एग्जीक्यूट नहीं करता है तो अटक के रहता है कितने साल तक. आपको पैसा सरकार ने बोलने पर भी, मोदी जी ने बना दिया प्लान, सब जगह में क्लीन होना चाहिए, स्वच्छ भारत. वो क्या है? स्वच्छ भारत प्लान इज अ शासकांग, बट देन एग्जीक्यूशन इज देयर. या उसको भी कोई चैलेंज करेगा? नहीं, वी डोंट अलाउ दैट दिस पर्सन मनी शुड गो. तो जब भी शासकांग, कार्यांग और न्यायांग they are not in sync, then what happens? Every policy you make, the policy is not implemented.
तो इसलिए वो सिंक है ना, वो न होने के कारण वी आर सेइंग इट्स अ कॉमन थिंग। इसलिए पहले से अगर जो बच्चे अभी अभी छोटे हैं उनके साथ में इफ दे एक्सपीरियंस टफनेस, नॉट अब्यूज, डिसिप्लिन विथ ऑनेस्टी, कि हमारे पास इतना है, इतने साथ में आपको रहना पड़ेगा। एक बाप ने भी अपने बेटे को बोला था, सीधा बोला, देख जिस बाप और बेटे की तुम काम कर रहा है, उसने जिस प्रकार से धन कमाया वैसा मैं नहीं कमाता हूं। आई हैव गिवन यू वैल्यूज, आई हैव गिवन यू कैरेक्टर, आई हैव गिवन यू कॉन्फिडेंस टू लर्न, एंड देयरफॉर इट इज वेरी इंटरेस्टिंग ऑल दिस पीपल, ऑलमोस्ट एवरीबॉडी जिन्होंने ओलंपिक्स में जीता हुआ है, ये लोग भूखे थे, भूखे लोग, और इसलिए कष्ट करने के लिए तैयार थे और कृतज्ञशाली थे। They were grateful to their poor parents, who are willing to support them, knowing very well कि हमारा limitation है। उन्होंने अपने गरीबी की निंदा की नहीं, अपने माता पिता को ये नहीं बोला, रे पता नहीं क्यों ऐसे माता पिता मिले, right? So it's a very interesting how they won. We are not talking अरे चाइना इतना जीता, मेरे उनके पास रिसोर्सेज, चाइना प्रोड्यूसेस फैक्ट्री, वो बड़े बड़े गोल्ड मेडल लेकर आता है, लेकिन 20 साल के बाद में सबके सब डिप्रेशन में चले जाते हैं। इफ यू स्टडी द होल स्टोरी ऑफ चाइना, इसलिए वी कांट कंपेयर ओनली व्हाट चाइना प्रोड्यूसेस एंड व्हाट इंडिया प्रोड्यूस्ड, एंड स्पेशली विद दिस काइंड ऑफ पीपल। सो वी हैव टू लर्न दिस एंड गिव देम टफ लव, not harsh love, not violent love. Love means tough love, no, honesty and transparency. Hare Krishna. Thank you, Govind Prabhu. We request Shilpa Mataji. Shilpa, we have asked you to unmute. Yeah, please go ahead and ask your question. Hare Krishna, Prabhuji. Dandavat pranam. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhuji, for the beautiful. Can you be a little louder, please? Yeah, thank you so much, Prabhuji, for the beautiful insight of principles of education. I just want to ask Prabhuji, you told that we should teach kids about bargain, but how to make a boundary between bargain and quarrelsome? Matlab, they should not go to the level of quarrel. So that I discussed that, they should not झगड़ा करना और बहस करना और लोगों के साथ संवाद करना, इसमें बड़ा अंतर होता है। एक बार मैं किसी जगह पे गया था, मेरे साथ में एक गुजराती व्यक्ति थे और हमें मूर्ति खरीदनी थी। तो मूर्तिकार से भाव पूछा कितने का है, तो उसने बोला कि 22,000 रुपए का, 22,000 रुपीज। मैं ये कहानी बहुत जगह पे कहता हूँ। तो अगर एक साधारण व्यक्ति है जिसको इसकी जानकारी नहीं है मार्केट का, नेचुरली वो क्या कहेगा, 22,000 का कितना कम करोगे आप? तो उन्होंने चालू किया 2,000 रुपए से। मैं तो वहां से भाग गया देखकर, अरे बाप रे, ये कितने का मांग रहे हैं। और उन्होंने उसको 3,000 में खरीदी कर लिया, 2,500 या 3,000 में खरीदी कर लिया, राइट। तो उसमें मैंने क्या देखा, एक तो उसमें मैं अगर होता तो क्या करता था, हाँ, आई शुड हैव स्टार्टेड, आई लर्न वन थिंग, अरे कम से कम डिनोमिनेटर से मांगो, क्या देगा वो, गाली देगा ना। सो आवर पीपल, आवर चिल्ड्रन, अब तो झगड़ा तो करते ही नहीं है आजकल के बच्चे लोग। हमारे पूर्वज लोग करते होंगे झगड़ा, आज के बच्चे लोग बार्गेन करते ही नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा ए साइड में जाने पर कोई समस्या नहीं होगी, राइट। अगर मैंने सोचा अरे नहीं, इतना कम नहीं देना चाहिए उसको, 2,500 तो बहुत कम हो गया, ये ऑलमोस्ट थोड़ा दादागिरी जैसे हो गया। अगर उसको उसके कला के लिए भी थोड़ा सा भेंट देना चाहिए, वन शुड गिव देम। कला के लिए लोग होटल में जाकर टिप देते बड़ा बड़ा, राइट। सो दैट सेंसिटिविटी, वो संवेदनशीलता हमें बच्चों को सिखाना है कि व्हाट इज राइट बार्गेन, व्हाट इज क्वारल। और ये कब सीखेंगे, ये बोलने पर नहीं होता, वो देखने से होता है, अनुभव करने से होता है। इसलिए शिक्षा के 3 स्टेप्स है। व्हाट इज दैट? एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सप्लेनेशन एंड एनालिसिस, यानी कि अनुभव, बाद में अनुवाद और बाद में संवाद।
What is अनुभव? देखना, experiencing it, feeling it. तो feeling के बाद में थोड़ा सा बड़े हो गए, feeling के साथ में along with the experience comes the explanation. गीता का श्लोक experience किया, वो rhythm है, वो tune है, वो जो गाने का जो तरीका है, राग है, उसको अनुभव करते, कंठस्थ कर लेते, फिर आप उसके साथ में explanation कर रहे हो, और आगे जैसे बड़े होंगे explanation, experience, and then the debate. How does it apply? तीनों की भी आवश्यकता होती है. हाँ, जैसे हम लोग स्कूल में मैं कहता था, अरे everybody should stand in line. But if you go to the railway station, it is completely opposite. लोकल ट्रेन में कोई लाइन पे खड़ा नहीं होता, लेकिन वही अगर आप मेट्रो पे चले जाओ तो वहां लाइन पे खड़े होते हैं. क्यों? क्योंकि रिसोर्सेस बनाया हुआ है, सिस्टम्स बनाया हुआ है, और वो भीड़ को हैंडल करने के लिए और ट्रेन को हैंडल करने के लिए लोगों के पास समय से लाइन पे खड़े हो जाते हैं. राइट, सो देयरफॉर यू कांट गिव इंफॉर्मेशन विदाउट दे गेटिंग एन एक्सपीरियंस. इसलिए तीनों भी देना है. ये ज्ञान का 3 विभाग है: एक्सपीरियंशियल नॉलेज, एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट एक्सपीरियंस, एंड देन एनालिसिस ऑफ दैट एक्सप्लेनेशन. अनुभव, अनुवाद और संवाद. हरे कृष्ण. Thank you, Govind Prabhu. We have Anjali Upadhyay. She has raised her hands. Anjali Mataji, can you please unmute yourself? यस प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. धन्यवाद. आपका थर्ड पॉइंट था प्रभु जी कि विद्यार्थियों को फॉल्स कॉन्फिडेंस नहीं देना चाहिए और प्रश्नों के उत्तर देने के बदले प्रश्नों के उत्तर करने वाला बनना चाहिए. इसको इलाबोरेट कर सकते हैं किस तरीके से हमको फॉल्स कॉन्फिडेंस देते हैं अपनी डेली लाइफ में, और किस तरीके से हमको सर पे जैसे चढ़ा देते हैं कि नहीं सही कर रहे हो, गलत नहीं कर रहे हो. एक सबसे बड़ा, हाँ थैंक यू, उस सबसे बड़ा समस्या आजकल स्कूलों में एवरीबडी गेट्स द प्राइज. अरे उनको बुरा लगेगा, उनको बुरा लगेगा, इस प्रकार से हम सोचकर सबको प्राइज देते हैं. दे शुड अंडरस्टैंड कि फेल्यूर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ. अगर केवल फेल होने से कोई डिप्रेशन हो जाता है तो फिर आगे तो और बड़ा बड़ा फेल्यूर आएगा जीवन में. राइट, सो व्हाट डू वी डू? फॉल्स कॉन्फिडेंस भी कि माने कि हर चीज के लिए सर्टिफिकेट देना. तो उससे क्या होता है ना, ये चीजें बहुत चीप हो जाती है. एवरीबडी फील्स दैट आई एम प्रिविलेज्ड. हर एक को लगता है कि मैं प्रिविलेज्ड हूं. दुर्योधन के साथ में ऐसा ही हुआ ना. दुर्योधन के साथ में उसके पिताजी ने उसको प्रिविलेज्ड बनाया, और जैसे उसके सामने किसी लोग चैलेंज करने के लिए आ गए, ही वाज लाइक शेकन. ये कौन आ गए, कहां से आ गए? उनके प्रति इतना खुन्नस खाने लगा, उनको जलाने का प्रयास किया, उनको मारने का प्रयास किया. सो दोज हु हैव रेज्ड विद फॉल्स कॉन्फिडेंस, दे बिकम वायलेंट. तो इसलिए लेट देम एक्सपीरियंस रेगुलरली कॉन्शियस डिसिप्लिन्ड फेल्यूर. अगर आपके साथ में आपके बच्चे बार्गेन करते हैं, आपके विद्यार्थी बार्गेन करते हैं, कॉन्शियसली, नॉट एज अ रिएक्टिव, उनको हमें क्या करना चाहिए? अच्छा होने पर भी उनको नहीं देना चाहिए. सो दैट लेट देम फील, अरे नहीं, हमेशा मैं ठीक होने पर भी मिलेगा नहीं. इट्स नॉट अबाउट ऑलवेज आई विन, अदर्स विल ऑल्सो विन. राइट, तो ये जब भी डिस्कवर करेंगे तो उनको, इसलिए देखो ना आजकल जो बिजनेसमैन के बच्चे लोग भी अभी बिजनेस नहीं करना चाहते, बोलते नौकरी करना है. और नौकरी में क्या है? यू डोंट हैव टू टेक अ रिस्क. अगर सोचो पूरे मारवाड़ी समाज, गुजराती समाज, मारवाड़ी सिंधी बोले हमको नौकरी करना है, तो नेचुरली देश का तरक्की कम हो जाएगा, समाज कम पैसे वाला हो जाएगा. राइट, देयर शुड बी पीपल हु प्रोड्यूस जॉब्स रादर देन टेक जॉब्स. राइट, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये जो मॉडल क्वेश्चन आंसर is one of the greatest tragedy for learning also. Because rather than you finding the answer in the book, somebody has already written for you. That will give you grade. वो आपको marks दे सकता है, लेकिन आपको यश नहीं दे पाएगा.
इसलिए अगर आप देखोगे आजकल इन द बिगेस्ट कंपनी, सम ऑफ द गूगल हो गया, ऐसे बड़े बड़े कंपनी में they are not looking for degrees, they are looking for efficiency, they are looking for cooperation, they are looking for the competitive spirit. इसलिए 10% of this technological industry have dropout people. वो लोग ड्रॉप आउट है लेकिन एडवेंचरस है, साहसी लोग है, और जो साहसी व्यक्ति होता है वो कुछ भी सीखने के लिए, किसी न किसी प्रकार से सीखने के लिए वो प्रयत्न करता है। हम लोग साचा बना रहे हो, साचा से एक को बाहर निकालो, दूसरे को वैसे निकालो, इजी प्रोसेस। देयरफॉर प्रभुपाद जी ने कहा था मॉडर्न आधुनिक शिक्षण स्लॉटर उसकी है, नॉट ओनली दे आर नॉट गिविंग स्पिरिचुअल एजुकेशन बट दे आर मेकिंग अस डम, हमें वो बुद्धिहीन बना रहे हैं। और यू नो इट इज अ एरोगेंस ऑफ द इग्नोरेंस, अपने अज्ञान को लेकर अहंकारी बन जाते हैं बच्चे लोग, तो फिर यू नो यू कैन इमेजिन हाउ डेंजरस इट इज। Prabhu, we can take more questions. Yeah, somebody is asking how do we teach children? No, there are a couple of questions based on hands. I'll ask that. Okay, you want to take that question? Don't go. Yeah, this one I can do. How do we teach children the art of failure? Nobody wants to fail. Everyone wants to succeed and be perfect in everything. यही तो है ना, ये तो आयरनी है। जो अगर किसी ने फेलियर का अनुभव नहीं किया, यू नो, कृत्रिमता से उनको सक्सेस की ओर जबरदस्ती से बढ़ाने लगे, लेकिन समाज और दुनिया ऐसे बनाई नहीं ना। The world is not made like that. It's a land of duality. ये सांप सीढ़ी का खेल है। ये तो हारना निश्चित है और जीतना भी निश्चित है, और हारना भी शाश्वत नहीं है और जीतना भी शाश्वत नहीं है। और जो दोनों का अनुभव कर लेता है वो फिर he goes into higher level of dealing with risk. तो इसलिए बचपन से सांप सीढ़ी का खेल खेलो उनके साथ। और जब भी खाना बनता है, do not always feed them what they want, feed them what they don't want also. This is how it happens. Don't give them immediately what they want. अगर ठीक होने पर भी 4 दिन के लिए रुकाओ उनको, you should be conscious why you are doing it. And then as they are growing up, you have to discuss this. पहले experience देना है उनको द्वंद्व का, और बाद में थोड़ा बड़े होने लगते हो द्वंद्व के साथ में, एक्सपीरियंस के साथ में एक्सप्लेनेशन देना है। देखो अर्जुन के साथ में हुआ, व्हाट इज वनवास? रामायण में भी वनवास है, महाभारत में वनवास है, फिर बाद में भागवत में भी वनवास है। व्हाट इज वनवास? वनवास इज द लैंड ऑफ यू नो फेल्यूर एंड एक्सप्लोरेशन। लिमिटेशन ही गिव्स राइज टू एक्सप्लोरेशन ना। जो लिमिटेड व्यक्ति है वही एक्सप्लोर करता है, जो अपने आप को सक्सेसफुल समझता है वो प्रिविलेज समझता है। इसलिए कॉन्शियसली गिविंग देम दैट एक्सपीरियंस ऑफ पेन। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Going Prabhu, we have Dr. Preeti Rathi. Mataji, can you just unmute yourself? Mataji, you need to unmute yourself. Yeah. Hare sure. Krishna, can you hear me? Yes, we can. I have a related question which keeps on pouring to me. कि बच्चे लोग फोन पे रहते हैं आजकल के टाइम में, lot of kids they are on the phone. So parents have a query, how do we, because it is addictive. We all know phones are addictive. They see they see lot of unwanted stuff. They play on the phone. They have stuff to study on the phone. So how do parents उसको कैसे फोन से एडिक्टिव ना बनाएं? ये तो बच्चों का नहीं, सबका समस्या है। इट इज द प्रॉब्लम ऑफ द एंटायर ह्यूमन एग्जिस्टेंस इंक्लूडिंग एडल्ट्स आल्सो, इवन द एल्डरली पीपल आल्सो। तो कोई मुझे एक बहुत बड़े एक ज्योतिषकार बता रहे थे कि ये राहु है, ये सारा ये जो टेक्नोलॉजी है राहु प्लैनेट का प्रभाव होने के कारण जनरली वी विल मिस यूज ओनली। इसलिए इट्स बेसिकली ये इतनी बड़ी समस्या बन गई है। Actually, it is more dangerous than the terrorism or Taliban. Taliban केवल space को occupy. Of course, it is a dangerous thing also, no doubt. But more dangerous is that it actually creating a disruption of consciousness in a child, in an adult, in the parents. तो इसलिए मेरे एक मित्र है, उन्होंने बहुत सारे टॉयज बनाए
and all the toys are made through explaining the science. He has not made a rule for them not to see mobile, but instead he has given them. इसीलिए एक एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना पड़ता है ना, इन्वेस्टिंग विद चिल्ड्रन. अभी क्या है, यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट विद द चिल्ड्रन. अगर बच्चे अगर पहले से इंडिपेंडेंट बन जाते हैं ना, मैं उदाहरण देता था, पहले हमारे यहाँ टेप आता था लेक्चर सुनने के लिए. अब घर में कितना टेप ले जा सकते हो? तो वी हैव अ टेप लाइब्रेरी. 2 टेप लेकर गए, फिर अगले दिन वापस दिया, फिर आप अपने मित्रों को शेयर किया. दिस सोनी टेप्स यूज्ड टू कम. तो उसको हमारे वैष्णव सेवा प्रभु ने सब रिकॉर्ड करके रखा था. देन इवेंचुअली दिस टेक्नोलॉजी केम. आपके फोन में आप हजारों लेक्चर डाल दिया. यू डोंट नीड अ टेप मिनिस्ट्री, यू डोंट नीड योर फ्रेंड्स टू गिव यू. तो यह जो सकारात्मक जीवन को इन्होंने क्या कर दिया, मार दिया ये टेक्नोलॉजी के कारण. Similarly, for them to be entertained, the parents are not required. Even a mentally retarded child is becoming so-called self-sufficient. Of course, he's lost. वो गेम में lost हो गया है, इसलिए रिलेशनशिप में फेलियर हो रहा है. राइट? व्यक्ति कमरे में बैठकर 15-15 घंटा आराम से उसको भर भर के देख सकता है. He can be entertained. He doesn't want people around him. इसलिए I know the problem very deeply, right? You know the problem very deeply. But इसको जैसे emergency, जैसे COVID-19 को emergency में deal किया गया, it is actually seriously, I am not at all joking. It is more serious than COVID. क्योंकि पहले भी होता था ऐसे वायरस, 1920 में हुआ था, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था, फिर at the same time there was no communication. ये कम्युनिकेशन के कारण, डर के कारण कितने लोग बिना मरने वाले मर गए. No, so therefore it is a worse than virus. And if 5G आ जाएगा, right? तो इसके लिए अगर जैसे स्वतंत्र की लड़ाई, I am not at all joking, जैसे स्वतंत्र की लड़ाई हुई थी ना, उसी लेवल पे लड़ाई करना होगा. Otherwise, as the parents are telling the child, they are also blown away by it. As the parents are hearing from their grandparents are blown away by this. I have seen grandchildren and grandparents with same absorption doing different thing on the same mobile phone, right? उतना ही समय ले रहा हो. So yes, it's a bigger virus than the COVID virus, because COVID क्या आपका शरीर को मारेगा. ये तो पूरा हमें incapacitated ही बना देता है. I think therefore there are a lot of people opening this healing centers, technology जो detox centers, detox technology detox के लिए सेंटर खोल रहा है. उसका भी एडवर्टाइजमेंट तो टेक्नोलॉजी के द्वारा ही कर रहा है. It's a serious thing. There is no answer for this, but there is a big problem. The community, society has to work on it. I'll take a last. We can take the last question. Yeah. Okay, so Rupali Mataji, you can unmute yourself. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. मेरे 1-2 वर्ड्स छूट गए, मैं पूछ सकती हूँ आपसे? हाँ जी. 1-2 वर्ड्स छूट गए सेंटेंस में, that I can ask? Yeah. In that line, when we teach our children to become victorious, so that was teach them justice, submissiveness, and third one? When did I say that? Okay, what did anybody remember? Service, submissiveness, and Justice, submissiveness, and the third word was while facing the challenges outside the world, outside the home, in that paragraph. Service, justice. Anybody remember? Anybody has taken? Because ये part मेरे notes में नहीं है. मैंने ये बोला था विनयी भव विजयी भव. उसमें मेरा ये नहीं है. It is after the third principle.
Yeah. Okay. And then next line was, if shyness is there, then people have great confidence and remain humble. नहीं, क्या बोला? और once come back again. What do you say? If shyness is there, then people have great confidence and they remain. Humble, you're right. The humble is the right word. Humble and grateful. अगर विनयित humility के साथ में confidence competency है, naturally then you remain grateful and humble. Thank you, Prabhuji. Dandavat pranam. Thank you. Hare Govind Krishna. Prabhu, you want to continue, or there are a couple of more hands, but up to you, up to your availability. Okay, one last question we'll take because I have another class at Okay, 7. so we have somebody from Aurangabad, Radha Sumukhi Mataji. Can you unmute yourself? Radha Sumukhi Mataji from Aurangabad. हरे कृष्ण प्रभु जी। Yeah, go ahead, please, quickly. हाँ, या हरे कृष्ण प्रभु जी, नमस्ते प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि आपने लास्ट जो प्रिंसिपल था उसमें बताया था कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो शेमलेसनेस बिकम्स कॉन्फिडेंट। आपका आवाज फट रहा है। ओके, थोड़ा दूर पकड़ो स्पीकर से, आप हाँ। माइक से। सर प्रभु जी, आपने बताया था कि शेमलेसनेस बिकम्स कॉन्फिडेंट। आपने वो नीरज चोपड़ा का उदाहरण बताया था। Shamelessness considered as confidence. हाँ, या तो उसमें मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि अभी जो बच्चों के और पालक और बच्चों के बीच में एक अच्छा रिलेशन बनने के लिए एक ऐसा कंसेप्ट आ रहा है कि बच्चों के साथ फ्रीली होना चाहिए, उनके सभी चीजों के साथ हमें डिस्कस करना चाहिए, हम उनके एज में जाकर उनसे बात करना चाहिए। ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा फैमिलियर हो रहा है। तो इस बारे में एक मेरा प्रश्न था कि जैसे कुछ एज होता है, जैसे 15th के आगे बच्चे हर कोई चीज पालकों से बात नहीं कर सकते, जैसे अपनी फ्रेंडशिप हो या अदर रिलेशनशिप हो, लेकिन लोगों का कहना है कि नहीं, पालक को ऐसा बनना चाहिए कि उनके साथ वो सारी चीजें बात करना चाहिए। तो इज दैट बिकम अ शेमलेसनेस, बिकम अ रिलेशनशिप बिटवीन द पेरेंट्स एंड द इवन द किड्स? तो ये मतलब दूसरी तरीके से हम बात करेंगे, अगर पालक लोग उनके साथ ऐसे रिलेशनशिप, क्योंकि हमारे संस्कृति में बच्चे कभी भी इस तरीके से पालक उनसे नहीं पूछेंगे। जैसे किसी बच्ची को हम लोग शादी के बारे में पूछ रहे हैं तो उसके पति को, वो जो देखने आए वो लड़का, वो तुम्हें पसंद है कि नहीं, ऐसे पालक पूछते नहीं थे, है ना, वो किसी संकेत से वो जान लेते थे। लेकिन अभी लोग बोलते हैं कि उनके साथ फ्रीली होना चाहिए, इसीलिए सारी चीजें उनके साथ हम लोग डिस्कस करना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। तो इज दैट ओके, ये ऐसे होना चाहिए? ठीक है मानस जी, आप समझ गया प्रश्न आपका। गोविंद, तो इसका उत्तर ये है कि पहले मैंने ऐसे कहा कि कुटुंब, अगर आप रामायण में कुटुंब का वर्णन देखते हो, कुटुंब में कम से कम 7 से 10 लोग रहा करते थे। तो उसमें हर एक व्यक्ति को किसी न किसी के साथ में समस्या हुआ करता था और कोई न कोई वहां का शांति दूत बनता था। नो, सो देयर वाज अ डायनामिक्स ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कोऑपरेशन, गेटिंग राइट एडवाइस फ्रॉम पीपल। इसको कहते हैं अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंसी। हमारे लोग अनकॉन्शियसली कॉम्पिटेंट थे इसको हैंडल करने के लिए, परंतु दुर्भाग्यवश आज क्या हो गया है, we are supposed to become consciously competent because now we are experiencing unconscious incompetency। हम लोग इनकॉम्पिटेंट बन रहे लेकिन अनकॉन्शियसली समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए पेरेंट्स में, आई डोंट ब्लेम पेरेंट्स, आई डोंट ब्लेम चिल्ड्रन, चेंज ऑफ सिचुएशन के कारण हमें देखना है कि क्या काम करेगा ना, व्हाट विल वर्क। एंड हो सकता है कि आप अगर कृत्रिमता से सोचोगे चलो आई विल सिट एंड टॉक, अगर आपका साइकोलॉजिकल डिस्पोजिशन नहीं है और आपका बच्चा अत्यंत ज्यादा मॉडर्न होकर उसका लैंग्वेज, उसका कम्युनिकेशन स्किल, उसकी भाषा अलग है, तो उसको समझना, उसके साथ में बैठने वाला, ये तो इनको क्या बात, व्हाट दे विल अंडरस्टैंड। जनरेशन गैप इतना बड़ा होने के कारण अगर आप प्रयास भी करोगे उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। So therefore we have to create a system in such a way where professional help also is required in communication,
which is unfortunately not required. इसकी आवश्यकता नहीं थी 25-30 साल पहले। हम लोग जब स्कूल पढ़ते थे हमने कभी सुना ही नहीं था कि देयर इज अ स्कूल काउंसलर। कैमरा ऑन है। अभी 500 लोगों के स्कूल में भी 2-2, 3-3 काउंसलर होते हैं, बच्चों के लिए, टीचर लोगों के लिए, पेरेंट लोगों के लिए। यस, एंड अनफॉर्चुनेटली मेनी टाइम इट इज कमर्शियल सेंट्रिक। अगर आप पूरे साइकोलॉजी का इतिहास पढ़ोगे वेस्टर्न वर्ल्ड में, there is no clarity of psychology. There is no, just like if you want to study mechanical engineering, वहां तो concrete system है। अगर आपको MBBS पढ़ना है तो concrete system है, परंतु psychology में कुछ है ही नहीं। It is all limitless theories without proper systems. तो इसलिए this is another principle where it is a reality, discussion होना चाहिए, लेकिन आपके अंदर कैपेसिटी है, वो इंफॉर्मेशन जब भी देंगे, वेदर इट इज होमोसेक्सुअलिटी का हो गया, फिर लेस्बियन का हो गया, उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन का हो गया, उनके फूड हैबिट का हो गया, उनका लैंग्वेज का हो गया, जैसे मैंने कहा कि हमारे अगर कोई द वे वर्ड, स वर्ड का भी यूज करते थे तब को डांट मिलती थी। नाउ इन इंग्लिश लैंग्वेज एफ वर्ड इज क्वाइट कॉमन। रिसेंटली 2-3 ऐसे केसेस हो गए जहां बच्चे लोग अपने माता पिता से इसी भाषा का उपयोग कर रहे थे, एंड द पेरेंट्स गॉट फ्लिप्ड ऑफ। अरे व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग? तो सब्जेक्ट दूर रह गया, उसके भाषा पे आ गया, राइट? ही सेड दिस इज हाउ वी टॉक. If they want to hear us clearly, what we want to share our heart, this is a part of our psyche only. कुछ बोलने के लिए वो गाली आना ही पड़ेगा। देखो, अगर ये है तो अगर आप जाकर उनसे सुनोगे भी, because you're not prepared for it. It's like they're speaking a different language, जो आपको गाली के समान सुनाई देगी। So there is a huge debate between what language should constitute, how to communicate. मैं आज ही किसी को बोल रहा था, अंडरस्टैंड योर कैपेसिटी फर्स्ट। अगर आपका कैपेसिटी नहीं है उसको हैंडल करने के लिए, देयर इज नो पॉइंट इन डिस्कसिंग अबाउट दैट। फाइंड समबडी एल्स हु कैन हेल्प यू टू डिस्कस विथ योर चिल्ड्रन और whoever around you who wants to discuss. I think we'll stop here. Yes, Govind Prabhu, thank you very, very much. I mean, I understand you have a next class. I'm sure there are many more beautiful questions. The topic and the topic itself was so very churning. Govind Prabhu, आपका जो topic discussion था वो इतना churning वाला था, तो उसमें बहुत सारे प्रश्न जरूरी आएंगे, तो next session आप कभी आपसे साथ करेंगे। तो thank you Govind Prabhu, and we also like to thank all the people who attended. I'm sure you have gained, आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन और महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण नॉलेज मिला होगा प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन के ऊपर। तो ये अनाउंस करना चाहेंगे कि नेक्स्ट सेशन जो हमारा है वो 3 अक्टूबर को है। 3 अक्टूबर संडे है, फर्स्ट संडे ऑफ अक्टूबर। हिज ग्रेस राधा गोपीनाथ प्रभु ये सेशन लेंगे, तो आपको इन्फॉर्मेशन आएगी आपको। तो नेक्स्ट सेशन 3 अक्टूबर को राधा गोपीनाथ प्रभु द्वारा है। सो थैंक यू वेरी वेरी मच, और नेक्स्ट महीने में मिलेंगे हम। हरे कृष्णा। गोविंद प्रभु, धन्यवाद।